Hello everyone, now again welcome to video lecture class. Today I am going to talk about the some important question of the unit 1 and unit 2. Unit 1 and unit 2, that is related to MEd semester 1 paper number 3 education studies. As you know that unit 1 and unit 2, that is most important and vital for the coming examination. आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एमएड सेमेस्टर 1 के अंतर्गत पेपर नंबर 3 एजुकेशन स्टडीज में यूनिट 1 और यूनिट 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। उन सभी, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सभी प्रश्न आने वाले एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, जो आपके ऑनलाइन इंटरनल एग्जामिनेशन होंगे या फिर जो आपके यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन होंगे, उससे संबंधित आज मैं प्रश्न आपको दे रहा हूँ। जहाँ तक यूनिट 1 की बात है, यूनिट 1 दैट मीन्स डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा एक अध्ययन के विषय के रूप में, उससे संबंधित अलग अलग टॉपिक हैं। उसमें विद्यालयी शिक्षा दैट मीन्स स्कूलिंग एजुकेशन, करिकुलम, टेक्स्ट बुक, असेसमेंट यानी आकलन, पाठ्यक्रम, सिलेबस या साथ ही साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कैसी हो, किस प्रकार की हो, उसका शिक्षण अभ्यास और के साथ क्या संबंध है, उन सभी से संबंधित प्रश्न है। साथ ही साथ जो समसामयिक चुनौतियां क्या है, कंटेम्प्रोरी चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन, और उसके बाद उससे संबंधित कुछ विजन मिशन भी क्या है, विद्यालयी शिक्षा, शिक्षक शिक्षा या अध्यापक शिक्षा से संबंधित, ये सभी यूनिट 1 से। यूनिट 2 में इंटरडिसिप्लिनरी नेचर यानी उसकी प्रकृति क्या है, सहसंबंध यानी दूसरे विषय के साथ उनका आधार क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एक्सियोलॉजिकल इश्यूज, साथ ही साथ इशू रिलेटेड टू मॉनिटरिंग, मैनेजिंग एंड ऑल्सो विद द मैनेजमेंट, यानी प्लानिंग, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द स्कूल एजुकेशन एलोंग विद टीचर एजुकेशन। तो मैं अब इन सभी चीज़ों से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा, फिर एक एक करके सभी के आंसर के बारे में भी आपसे बात करूंगा। Now again welcome to video lecture class MEd semester 1 paper 3 education studies. Now MEd semester 1 paper 3 education studies. Now first I will describe in English MEd sem 1 paper 3 education studies unit 1, some question that is related to the unit 1. Probable question. Question number 1, first question, what do you mean by discipline of education? Critically analyze the education as discipline. Second question, discuss the significance of schooling, assessment and teaching learning process with their linkage to pedagogy and practices. Now question number 3, explain the contemporary challenges of school education. Fourth question, explain the need and emerging dimension of teacher education. Question number 5, explain the need for developing vision of school education. Number 6, discuss how experiential knowledge linked with empirical knowledge. Now question number 7, discuss how linked to number 1, content knowledge with pedagogy knowledge, theoretical knowledge with contextual knowledge. Number 3, universal knowledge with contextual knowledge. Now question number 8, discuss the main differences between curriculum and syllabus. Now question related to some important question related to unit 1. First question, explain the interdisciplinary nature of education and also discuss about relationship of education with other subjects. Now question number 2, elaborate with examples the contribution of science and technology in education. Now third question, discuss the various issues related to planning, management and monitoring of school education. Question number 4, explain the axiological issues in education with reference to peace, value and aesthetics. Question number 5, explain the relationship of education with political process.
नाउ अब मैं इन सभी प्रश्नों को थोड़ा हिंदी में बताऊं, तब फिर उसके बाद आंसर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एमएड सेम 1 पेपर 3 शिक्षा अध्ययन यूनिट 1 से संबंधित प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, शिक्षा के अध्ययन विषय से आपका क्या अभिप्राय है? शिक्षा का अध्ययन विषय का सकारात्मक विश्लेषण करें। नंबर प्रश्न संख्या 2, विद्यालयी शिक्षा, मूल्यांकन और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के महत्व के साथ उनके शिक्षण और प्रथाओं या अभ्यास जिसको बोलते हैं के संबंध के बारे में चर्चा करें। प्रश्न संख्या 3, विद्यालयी शिक्षा के समकालीन चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 4, शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता और उभरते आयामों के बारे में बताएं। प्रश्न संख्या 5, विद्यालयी शिक्षा के उद्देश्य विकसित करने की आवश्यकता बताइए। नंबर 6, अनुभवजन्य ज्ञान कैसे प्रयोगसिद्ध ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है, चर्चा करें। प्रश्न संख्या 7, चर्चा करें कि कैसे जुड़ा है। नंबर 1, विषय वस्तु ज्ञान के साथ शिक्षण शास्त्र ज्ञान। नंबर 2, प्रासंगिक ज्ञान के साथ सैद्धांतिक ज्ञान। नंबर 3, प्रासंगिक ज्ञान के साथ सार्वभौमिक ज्ञान। प्रश्न संख्या 8, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के बीच मुख्य अंतर पर चर्चा करें। यूनिट 2 से संबंधित जो संभावित कुछ प्रश्न हैं, प्रथम प्रश्न यानी पहला क्वेश्चन, शिक्षा के अंतः विषय प्रकृति की व्याख्या करें और अन्य विषयों के साथ शिक्षा के संबंधों के बारे में भी चर्चा करें। प्रश्न संख्या 2, शिक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के योगदान के उदाहरणों के साथ विस्तृत चर्चा करें। प्रश्न संख्या 3, विद्यालय शिक्षा की योजना, प्रबंधन और निगरानी से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करें। प्रश्न संख्या 4, शांति, मूल्य और सौंदर्य शास्त्र के संदर्भ में शिक्षा में शैक्षिक मुद्दों को स्पष्ट करें। प्रश्न संख्या 5, राजनीतिक प्रक्रिया के साथ शिक्षा के संबंध को स्पष्ट करें। Now, initiate with the first question. Some basic description about the answer. Question number 1. What do you mean by discipline of education? Critically analyze the education as discipline. Discipline of education means the mode or pattern of education or criteria of education. And if you emphasize critically analyze the education as discipline, in the sense that means you have to discuss all relevant area of the education, means you should emphasize the process and activity along with all area of the education. हिंदी में अगर मैं इस प्रश्न के बारे में बात करूं तो शिक्षा के अध्ययन विषय से आपका क्या अभिप्राय है? शिक्षा का अध्ययन विषय का सकारात्मक विश्लेषण करें। इस प्रश्न के उत्तर की अगर बात करूं तो मैं शिक्षा के अध्ययन विषय से आपका क्या अभिप्राय है, अर्थात शिक्षा के बारे में मूल बातें, शिक्षा का अर्थ और शिक्षा का आधार की शिक्षा यानी एक अध्ययन के विषय के रूप में कैसे है और इसमें सभी बातें किस प्रकार से की जाती हैं। अगर शिक्षा का अध्ययन विषय का सकारात्मक विश्लेषण का तात्पर्य हो गया शिक्षा से संबंधित प्रक्रियाएं, शिक्षा की विशेषताएं, शिक्षा कैसे किन किन क्षेत्रों से जुड़ी हुई है उसके विषय क्षेत्र, साथ ही साथ कैसे शिक्षा का सहसंबंध किसी दूसरे विषय के साथ है और कैसे शिक्षा दैट मीन्स पढ़ने के लिए तकनीक के रूप में या अन्य संबंधित क्षेत्रों में कैसे मदद करती है, उन सभी चीज़ों का विस्तार से चर्चा इसमें किया जा सकता है और उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीज़ों के बारे में भी बता सकते हैं। अभ्यास, शिक्षण अभ्यास के अंतर्गत ये कैसे जरूरी है, पढ़ाने के लिए कैसे जरूरी है, इसका फाउंडेशन यानी इसकी भूमिका जो है वो आधार क्या है, कैसे ये जुड़ा हुआ, कैसे इन इस प्रकार से इसका आप उत्तर जो है वह सकारात्मक विश्लेषण के साथ पूरा कर सकते हैं। तो मैं आगे क्लास में इसी प्रकार से जितने भी प्रश्न हैं सभी का आंसर को जो है एक एक करके स्पष्ट करूंगा। आप एक एक करके आंसर को जो है वो सुनेंगे और आगे के जो वीडियो लेक्चर होंगे इस आंसर से संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं उससे संबंधित आंसर को मैं विस्तार से बताऊँगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए वीडियो के साथ ही अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अति शीघ्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बारी बारी से धीरे धीरे मिलेंगे। तो लास्ट में
मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।